Hello and welcome to this episode of Rich Beyond Your Wildest Dreams podcast. I am Anshul Bajaj and I am your host for the show. Why I am doing this is because I really want each one and every one of us to be financially free in life. And what I really want to do is learn what people who have been rich, who have been successful, what they have done, and just do the same things. See, we don't necessarily have to reinvent the wheel all our lives. If the path of success has already been written, can we just see what that is and can we just walk on that path? That's what Tony Robbins says, that you adopt a role model. You just go and see what they are doing and you just reap those results what those people have gotten. And that's what we are going to do. So in today's episode, what we are going to do is we're going to learn how to manage our money and how to master our lives. And that's right, we're gonna manage our money and we're gonna master our lives. क्योंकि अगर आपने अपनी ज़िंदगी का मनी पोर्शन बिल्कुल सही सेट कर लिया ना, अगर आपने अपनी ज़िंदगी का मनी पोर्शन सही सेट कर लिया, then there's like 80% of your life is sorted. And this is what comes from my personal observation and from my learning. So in today's episode, we're going to learn how can we manage our money? What is the world's simplest and the best and the most effective money management system? What is that system? How do we apply it in our life and get the results which rich and successful people have got? But before doing that, वो करने से पहले I just want to go back one step and I want to take you through certain things that I've discussed with you in my previous episodes. Because, like I discussed in my last episode also, that I was trying to lay a foundation. I was just trying to lay a foundation on which our Empire State Building can be set up. So just let me take you a few steps back and let me say what I've just told you till now. So we're gonna manage our money and we're gonna master our lives. The first thing that I want to talk to you today is that, are you really clear in your life how to be that you have to be financially free? आपको क्लियर हो गया है अभी तक कि मेरे को जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मेरे को रोज पैसे के लिए काम नहीं करना. आई कैन नॉट बी अ सर्वेंट फॉर मनी. I serve, money serves me. I don't serve money. Are you really clear on this thing? देखो, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ. आपसे दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी चीज़ की बात कर ले, कुछ भी चीज़ के बारे में बता दे, बट जब तक वो चीज़ आपको दिल से नहीं चाहिए होगी ना, जब तक वो चीज़ आपको दिल से नहीं चाहिए होगी, वो आपके साथ होगी नहीं, वो आपके साथ होगी नहीं. सो नो मैटर हाउ मैनी फाइनेंशियल फ्रीडम थिंग्स, how many things to be financially free, whatever tools, whatever investment I tell you, but till the time you really don't want financial freedom in your life, it will not happen to you or it will not stay with you. It will not happen to you or it will not stay with you. That is why it's really important that the will to be financially free, the desire to be financially free comes within us. So, ये करना क्यों ज़रूरी है? ये काम जब आप कर रहे होगे कि कैन आई बी फाइनेंशियली फ्री, डोंट गो इन हाउ. इसमें मत घुस जाना कि हाउ विल आई बी फाइनेंशियली फ्री. अभी मैं इतनी मेरे को इनकम चाहिए एंड वो इनकम क्या मुझे बिना काम किए भी मिल सकती है. डोंट गो ऑन हाउ. एंड दैट्स व्हाट आई डिस्कस्ड इन माई लास्ट एपिसोड ऑल्सो, एंड दैट्स कॉल्ड ट्रिनिटी ऑफ हाउ. डोंट गो इन हाउ, बट जस्ट बी क्लियर ऑन वाई यू नीड टू बी फाइनेंशियली फ्री. What all can you do when you are financially free? Create that desire from within. वो चाह फाइनेंशियल फ्रीडम की, वो रीजन इतना मजबूत अपने अंदर बना लीजिए that no matter what, I am going to be financially free. Yes? Say yes. The next thing that I want to talk to you today is that, have you checked your beliefs about money? हाउ यू थिंक अबाउट मनी. आपके क्या धारणाएं, क्या बिलीफ सिस्टम, क्या सोच, क्या सेट पॉइंट है पैसे को लेकर, आपने वो चेक कर लिया है क्या अभी तक? और नहीं किया है तो आप एक चीज समझो, आवर माइंड इज अ लैंड. Our mind is a land.
and the land's duty is to give you what you sow in it. The man's duty is to give you what you sow in it. But if you are sowing a fresh crop and there are already weeds on the land, then will the crop grow? अगर हमारे दिमाग में ऑलरेडी वीड्स हैं, कुछ ऐसे प्रिजम्पशंस, कुछ ऐसी धारणाएं, कुछ ऐसे सोच, कुछ ऐसे विश्वास हमारे अंदर ऑलरेडी पैसे को लेके बन गए हैं, तो क्या हम कभी भी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम या उस पैसे की तरफ जा पाएंगे, उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे? द आंसर इज नो. सो वी हैव टू बी रियली क्लियर कि हमारे पैसे को लेके क्या बिलीव्स हैं. सो सिंपली जस्ट थिंक, हाउ डू आई रियली फील अबाउट मनी? मेरे को अपनी जिंदगी में ना सच में पैसे के बारे में क्या लिखता है, बिकॉज कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो गेम ऑफ बिलीव्स. सो वॉट डू आई रियली फील अबाउट मनी एंड हाउ कैन आई चेंज? टू चेंज द फ्रूट्स आई हैव टू चेंज द रूट्स. To change the fruits, I have to change what? I have to change the roots. So, the roots are coming from the mind. What you see outside, जितना पैसा आपके पास अभी है, या पैसा आसानी से आता है या मुश्किल से आता है, that is just the fruit. That is just the money on its material level. It is not the money on its psychic level or the spiritual level. On the spiritual level, what money is, जो आपकी beliefs हैं. अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपके लिए फिर वो मुश्किल हो जाएगा. यही सच है. दैट इज द ट्रूथ. सो रियली रियली चेक योर बिलीव्स. चेक योर बिलीव्स कि अभी मैं क्या सोचता हूं. और आपको ऑलरेडी बिलीव्स कैसे चेंज करनी है वो चीज़ें पता है, या आप और पुराने एपिसोड्स देख सकते हो, दैट हाउ कैन आई क्रिएट न्यू बिलीव्स अबाउट मनी. सो बट डू चेक योर बिलीव्स. द थर्ड थिंग इज, डू यू नो योर फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर? आपको अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर अभी पता है या नहीं पता? क्योंकि इसके बारे में मैं लास्ट 2 एपिसोड से बात कर रहा हूं. सी, रिच एंड सक्सेसफुल पीपल ऑलरेडी नो देयर, ऑलवेज एंड ऑलवेज नो देयर नंबर्स. आप किसी भी रिच इंसान से मिल लेना, उसको उसके नंबर्स पता होंगे. अगर वो बिजनेस में है, उसको उसका टर्नओवर पता होगा, उसको उसके प्रॉफिट्स पता होंगे, उसको उसका एक एक खर्चा पता होगा, उसको कितनी इनकम आ रही है, कितना टैक्स आ रहा है, वो सब दे रहा होगा. दिस इज वन हैबिट दैट ईच एंड एवरी रिच एंड सक्सेसफुल पीपल आई हैव मेट, they know it to the core, that they know their numbers very well. So the first reason is, the second reason that is that our mind is a magnet. हमारा जो दिमाग है ना, ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है. And once we put that number, then it gives us clarity, and clarity gives you power. That magnet is charged. वो मैग्नेट का चार्ज हो रहा है क्लैरिटी आने से. So if you can get that clarity, you have to get that clarity to attract that. For आपका RAS part of the brain will start getting your focus on financial freedom. So know your number. अगर अभी भी आपको नहीं पता है, then go back and listen to my previous episodes and know your financial freedom number. The next thing is, which I discussed in the last episode, and it is the most important thing. It is the most important thing, and it is called pay yourself first. Pay yourself first. See, part of everything that we earn is for ours to keep. ये line आई थी richest person in Babylon से, and that book was written in 1929. So if you cannot pay yourself first for your future, you will never be financially free in life. This is one thumb rule जो 100 साल से चला आ रहा है, that you have to pay yourself first. From whatever you earn, you have to pay yourself first, and then you pay everything else. So अगर अभी तक आपने लास्ट एपिसोड में अपना परसेंटेज डिसाइड नहीं किया है कि मैं कितना % पैसा खुद को दूंगा, अपने फ्यूचर के लिए दूंगा, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम फंड के लिए दूंगा, then do it right now, and you have to automate it. Automate it मतलब कितना % इतने रुपए मेरे खाते से ऑलरेडी कट के ऑटोमेशन से ECS या किसी तरीके से किसी और अकाउंट के अंदर जा रहे हैं. आई हैव टू रियली ऑटोमेट इट. द नेक्स्ट थिंग इज, एंड नाउ वी बिगिन, दैट जब आप अपने दिल में क्लियर हो गए कि अब मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, व्हेन यू नो इट इन योर हार्ट दैट आई नीड फाइनेंशियल फ्रीडम, माई बिलीव्स अबाउट मनी आर पॉजिटिव बिलीव्स, आर एम्पावरिंग बिलीव्स. आई नो हाउ मच मनी आई नीड टू बी फाइनेंशियली फ्री. हर महीने कितनी इनकम चाहिए जब जिससे मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाएगा.
and I've made a system of paying myself first. Then comes the next step, and the next step is begin the journey of managing your money. Begin a journey of managing your money. See, why money management is important. और मैं आपसे जो भी बात करता हूँ, you already know it that I always go on why first. कि भाई मनी मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है. एंड टू आंसर दैट आई वॉन्ट यू टू थिंक कि आपने कभी फुटबॉल का गेम देखा है. सो फुटबॉल के गेम में क्या होता है, क्या होगा अगर फुटबॉल के गेम में अगर सब प्लेयर्स, जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं वो सारे बॉल की तरफ या गोल पोस्ट की तरफ भागने लग जाएं, क्या होगा. देयर विल बी अ केओस. यस, क्या होता है फुटबॉल में. फुटबॉल में देयर इज अ डिविजन ऑफ टीम. सम पीपल आर डिफेंडर्स, सम आर फॉरवर्डर्स, सम आर मिडफील्डर्स, वन इज अ गोलकीपर. सो जिसका जो फंक्शन है उसको उसके हिसाब से डिवाइड कर दिया है. और यही अगर जो कोच है वो सबको बोले कि नहीं सबको गोल करना है, सबको बॉल की तरफ भागना है, देन क्या होगा. एंड दैट्स व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में अलग अलग तरह के खर्चे हैं, हमारी लाइफ में अलग अलग मनी के फंक्शंस हैं. लेट मी पुट इट दिस वे दैट मनी सर्व्स डिफरेंट फंक्शंस टू अस. And what we are trying to do is we are trying to serve all functions of money from one source. हम पैसे के सारे फंक्शन, सो मुझे पैसा अपने घर खर्च के लिए भी चाहिए, मुझे पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए भी चाहिए, मुझे पैसा घर बनाने के लिए भी चाहिए. देयर विल बी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ दिस, functions of this, and I'm trying to fulfill them from just one source. And there will be chaos, and there has been chaos if you've not been good with money management. अगर आप इस चीज़ में अच्छे नहीं हो, देयर वुड हैव बीन लिक्विडिटी क्राइसिस इन योर लाइफ. एंड जब जिस चीज़ के लिए पैसा चाहिए उस चीज़ के लिए होता नहीं है, और जब होता है तो जो जिस चीज़ में डालना होता है उसमें डालते नहीं है. सो दैट इज वन बिग रीजन ऑफ मनी मैनेजमेंट. एंड हैविंग सेड दैट, rich and successful people, without an exception, all rich and successful people are brilliant managers of money. They are not just smart people, they are not just lucky people, they are the most efficient, they are the most effective money managers of the world. Each one of them is starting from financial giants to a manufacturing giant to a service giant. Each one of them have been amazing, brilliant money managers. So if we have to be like them, we have to learn how to manage our money in our life. And the game that we are going to play, in managing money is not a new game. It's a game we have heard it from the beginning. We have heard it in the past, we've heard it all our life. And that game is, we are going to play divide and rule. We're going to divide the functions of the money, and we are going to rule the money in our life. So we are going to divide the sources of money, divide the functions of money, and rule it from our life. And बहुत लोगों को मनी मैनेजमेंट पे आके लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी फ्रीडम कर्टेल हो जाएगी या उनके रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा लाइफ में. बट लेट मी टेल यू, money management is one thing which actually gives you freedom in life. It frees up you from so many things that you really want to do. अगर आपने एक ये चीज़ सीख ली ना, it will save you, it will really free you, it will really empower you in your life. See, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, the thing that I learned it in September 2018 by attending a workshop which I've always told, Millionaire Mind Intensive by T. Harv Eker. एंड तब से लेकर अभी तक द कैश फ्लो एंड द सोर्सेज ऑफ मनी हैव जस्ट इंक्रीज्ड फॉर मी. दे हैव जस्ट मल्टीप्लाइड फॉर मी. सो इट हैज़ गिवन मी फ्रीडम. एंड बहुत बार लाइफ में हमें बहुत चीज़ों पे गिल्ट होता है, इन द सेंस कि अगर मैं खुद पे कई बार खर्चा कर रहा हूँ तो मुझे उसका गिल्ट हो रहा है, या अगर मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो मुझे गिल्ट हो रहा है, या अगर मैं अपने नेसेसिटीज़, अपने घर खर्च पे उतना नहीं कर पा रहा तो मुझे गिल्ट हो रहा है. So the concept of money management is there to free us. It is there to give us freedom. It is there to empower us, and that is why rich and successful people have gained success with it. अगर ये मनी मैनेजमेंट का फंडा इतना सक्सेसफुल नहीं होता तो अभी तक लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे होते. Yeah. So are you ready now? Are you ready to learn
the world's most simplest, the world's most effective money management system. Yes, yes, let's do that. Let's begin. So this is 100% of our income. एंड मैं आपको ना परसेंटेज देने वाला हूं कि आपकी इनकम का कितना परसेंट किस बकेट के अंदर या किस सोर्स के अंदर जाना चाहिए, किस फंक्शन के अंदर जाना चाहिए. सो वी आर गोइंग टू कॉल इट बकेट्स. इन MMI, द वर्कशॉप आई अटेंडेड, वी यूज टू कॉल इट जार सिस्टम, बट हेयर वी कैन कॉल, यू कैन कॉल इट जार, यू कैन कॉल इट बकेट, जैसा आपको सेट करे. सो जो भी आपकी इनकम है, 100% ऑफ योर इनकम, उसका 10% पैसा, उसका 10% पहला 10% जाएगा कहाँ पे? कंट्रीब्यूशन में. दिस विल बी योर कंट्रीब्यूशन बकेट. सी, कंट्रीब्यूशन ही ऐसी चीज है जो वो ये गारंटी करता है आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को. ये 10% पैसा आपके बाकी 90% को गारंटी करता है. So I made a special episode in this which is called Guarantee Your Financial Success. This is absolute guarantee of financial success. So पहला 10% जो है ना, that's universe way of making us accountable. It is universe way of making us disciplined in life. So I mentioned that I attended UPW by Tony Robbins. It's a 4-day workshop that I attended. So Tony Robbins says how to get what you want in life, and the first he says is start with focus. Second he says is take massive action, keep repeating your action. So focus on what you want, take massive action, focus on what you want, take massive action. And the third step he shared is what you need is called as grace. So सारी बात करके, पूरी मैसिव एक्शन की, पूरे हर चीज की, मोटिवेशन की, हर चीज की बात करके लास्ट में टोनी रॉबिन्स बोलता है द थर्ड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज दैट यू नीड ग्रेस. और वो ग्रेस वो कहाँ से आ रही है? दैट इज कमिंग फ्रॉम मेकिंग दिस 10% कॉन्ट्रीब्यूशन. सो द 10% इज एक्चुअली लाइक एन इंश्योरेंस. इट इज लाइक अ गॉड्स सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम. इट्स अ गॉड्स वे ऑफ जजिंग कि वो आपको ट्रस्ट कर सकता है क्या. Like I said, can God trust you with all these resources in the universe? If you are giving your 10%, that's what God knows that yes, I can trust Him. And that's where you're going to get more and more and more. The second 10%, so 100% में 10% contribution. Next is about 10 to 15% should go in your financial freedom fund. This is what I call pay yourself first, pay your future first. This has to go in your financial freedom fund. अब ये परसेंटेज जो है, जो मैं स्लैब्स दूंगा, ये 10% भी हो सकता है आपके लिए, 15% भी हो सकता है, या आगे चल के हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन वेरी दीज परसेंटेजेस. बट अ स्टैंडर्ड मिनिमम थ्रेशोल्ड 10% और उसके ऊपर का है. ये 15% इन टूडेज टाइम इज वॉट आई थिंक इज द आइडियल. So whatever you earn out of your salary, you earn out of your business, you earn out of anything. It has to go through this bucket system, जिसका 10% जा रहा है contribution में, और उसका next 10 से 15% जा रहा है अपने future self की तरफ. It is going to your financial freedom fund. The next 10% goes to long-term savings for spending. Long-term सेविंग फॉर स्पेंडिंग मतलब ऐसा पैसा जो मैं सेव कर रहा हूं खर्च करने के लिए. ऐसा पैसा जो मैं सेव कर रहा हूं खर्च करने के लिए, जैसे कि हो सकता है मैं शादी के लिए सेव कर रहा हूं, हो सकता है मैं गाड़ी लेने के लिए सर्च कर रहा हूं, हो सकता है मैं अपना एक्सपेंसिव फ़ोन लेने के लिए सेव कर रहा हूं, हो सकता है मैं घर बनाने के लिए सेव कर रहा हूं. सो वो पैसा जो मैं फ्यूचर में स्पेंड करने वाला हूं बट लॉन्ग टर्म का है और इसलिए मैं उसके लिए सेव कर रहा हूं. सो इंडिया में स्पेशली LTSS इज वॉट इट इज कॉल्ड, एंड इंडिया में LTSS बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इंडिया में LTSS बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज हम लोग अपनी शादी के अंदर या अपने घरों में भी बहुत पैसा खर्च कर देते हैं जो मैनेज नहीं होता. दिस मनी इज जस्ट इन फ्रॉम
एंड देन वी टेक डेट फॉर इट. दिस मनी इज कमिंग फ्रॉम आर रूटीन सोर्सेज और फिर हम उसके लिए डेट लेते हैं. सो इंडिया में टू हैव अ सिस्टम ऑफ LTSS इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस. सो नेक्स्ट परसेंटेज गोज टू योर नेसेसिटीज. 50 से 55% नेसेसिटी में जाना चाहिए. नेसेसिटी मतलब आपका घर खर्चा, आपका घर चलाने का सामान, आपकी अगर कुछ फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ है, मे बी इट इज़ योर EMIs, तो वो भी इसके अंदर आ गई. मे बी योर ट्रैवलिंग कॉस्ट, योर मोबाइल कॉस्ट. सो जो भी नेसेसरी है आपको ज़िंदगी जीने के लिए, दैट शुड बी अबाउट 50 to 55% ऑफ योर इनकम, वो यहाँ पे आना चाहिए. अब किसी के लिए ये पैसा 50, उसकी इनकम का 50% होगा, किसी के लिए ये 30% होगा, किसी के लिए 70% भी होगा. लाइक इट कैन बी पॉसिबल कि आप 100 रुपये कमा रहे हो जिसमें 70 रुपये आपकी नेसेसिटी है, एंड एट द सेम टाइम इट कैन बी पॉसिबल कि आप 100 रुपये कमा रहे हो और उसमें से शायद 30% ही आपकी नेसेसिटी है. येस, दैट हैपन्स बिकॉज ये थ्रेश होल्ड परसेंटेजेस है. सो अगर आपका नेसेसिटी, सो लेट मी टेक यू वन सिनेरियो. द फर्स्ट सिनेरियो इज कि मेरा नेसेसिटी बकेट कम है, मतलब 50% से कम है मेरी इनकम का, मेरे को लेट्स से 30% ही नेसेसिटीज में देना है. वेल देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट्स अमेजिंग. सो वो जो रिमेनिंग 20-25% बच गया, वो 20-25% आप जो रिमेनिंग है वो आप अपने LTSS में डाल दो, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम फंड में डाल दो, या अपने कंट्रीब्यूशन में डाल दो. दैट इज अप टू यू. सो इफ यू आर स्पेंडिंग लेस मनी ऑन वन जार, you can on the necessity jar, this rule is only for the necessity jar. If you're spending less money on this jar, then you can shift it to financial freedom fund या LTSS jar. So if you are spending less money, then you can shift to LTSS और financial freedom fund. अगर अब आप बोलते हो कि मेरी necessities 50% से ज़्यादा है मेरी इनकम की, मेरी नेसेसिटीज़ 50% से ज़्यादा हैं, then I'm gonna tell you that you have to simplify your life. आपको ना अपने खर्चे, अपनी ज़िंदगी थोड़ी सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी. एंड वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, वी विल लर्न हाउ टू डू दिस. बट जस्ट गेट एन आइडिया कि अगर अभी मेरे नेसेसिटी के खर्चे मेरी इनकम की 50% से ज़्यादा आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करने की. जस्ट गेट इन दिस टू योर हेड. या the next 10% goes in education, and this is one of the most important jars. It is one of the most important buckets. So education किसकी? Education आपकी. I repeat, 10% of what you earn has to go in your education. So I've listened to Jim Rohn's tapes, I've listened him speak. एंड जिम रोहन कहता है कि वी हैव टू वर्क हार्ड ऑन आवर सेल्फ देन वी वर्क ऑन आवर जॉब. सी, जो पूरी मशीनरी, द पर्सन, द ऐप, द सॉफ्टवेयर दैट इज रनिंग द होल शो इज अस. हम ही वो ऐप है, हम ही वो मशीनरी है जो ये पूरा शो चला रहे हैं. एंड अगर वो ऐप को हमने अपडेट नहीं किया, वो मशीनरी को हमने अपडेट नहीं किया रेगुलरली, देन द शो विल गो डाउन. सो टू हैव समथिंग इन लाइफ you've never had, you have to become someone you have never been. And how do you do that? You do that by spending on your self-education. You do that by conditioning your brain for that success. And so you have to determine कि मैं अपना 10% no matter what, I'm gonna spend it in my education. I'm going to spend it in my education. And the last 10% जो remaining बच गया, that is your play jar. It is your play bucket. It is a bucket to have fun. It is a bucket to go out to party. It is a bucket to do what you feel like. आप खुद पे खर्चा करने के लिए, आपको मसाज करना पसंद है, मसाजेस लो. ट्रैवल करना पसंद है, इस 10% से ट्रैवल करो. लाइक दिस इज योर मनी. आपको मजा आ रहा है, आपको उड़ाना है, पैसा उड़ाओ. बट अंडरस्टैंड दैट यू हैव दिस फ्रीडम. इफ वी डोंट रिवॉर्ड आवरसेल्व्स, देन हु इज गोना रिवॉर्ड अस? इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, अगर हम खुद को ही रिवॉर्ड नहीं करेंगे तो ये भगवान भी हमें रिवॉर्ड नहीं करेगा. या सो दिस 10% is the 10% you're gonna really enjoy it, you're gonna really love, you're gonna just do, you're gonna eat where you want to eat, you're gonna shop what you want to shop.
But this 10% is yours. It is yours to spend. It is yours to splurge. Yes? So this is the world's simplest and the easiest money management system. First 10% goes in contribution. Next 10 to 15% goes in financial freedom. Another 5 to 10% goes in long-term savings for spending. 50 to 55% goes in necessities. 10% goes in education. Another 10% goes in your play jar. If you want to keep note, then keep this percentage note with you. Keep this percentage note with you. तो क्या लगा आपको? Can you be the world's most effective money manager now? I've given you the formula. I've given you the percentages. I've given you the buckets. I've given you the sources. Can you now take the journey to be world's best money manager? But I didn't tell you one thing. And that one thing is कि ये परसेंटेज जान लेने से आपका काम होगा नहीं. आपको इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा. और वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होगा? उसके दो तरीके हैं. आपका पैसा अभी एक सेविंग्स खाते में आता है. अब मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ बैंक्स अकाउंट से रिलेटेड. आपका पैसा अभी एक सेविंग खाते में आता है. आप या तो पहला ऑप्शन है कि आप अलग अलग सेविंग खाते खोल लो. एक खाता मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम का है, एक मेरा प्ले का है, एक मेरा LTSS का है. ऐसे अलग अलग अकाउंट्स बना लो. पहला ऑप्शन तो ये है. और जिस दिन आपकी सैलरी आए या जिस दिन आप अपना पैसा अपने धंधे से निकाल के अपने सेविंग बैंक में डाल रहे हो, उसी दिन हाथों हाथ ट्रांसफर कर दो. इफ देयर इज अ सिस्टम टू ऑटोमेट इट, देन ऑटोमेट इट टू डिफरेंट अकाउंट्स. द सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट इज, बैंक्स में एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं RD, रेकरिंग डिपॉजिट. इट इज पार्ट ऑफ योर मेन सेविंग अकाउंट, बट द बैंक ऑटोमेटिकली गिव्स इट टू अ डिपॉजिट अकाउंट. एक डेट ऑफ मंथ आप फिक्स कर सकते हो कि मेरी RD आएगी. सो यू कैन मेक डिफरेंट RDs फॉर ईच एंड एवरी सोर्सेज. यू कैन मेक एन RD फॉर LTSS, यू कैन मेक एन RD फॉर एजुकेशन. तो ये पैसा क्या है, अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग बकेट्स में आपको डालना पड़ेगा. सिर्फ समझने से होगा नहीं. बिकॉज अगर आपने समझा कि नहीं मैं अपनी इनकम का 10% इस पर खर्चा करूंगा. फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है 1 लाख रुपए और आपने डिसाइड किया कि मैं 10% अपनी एजुकेशन पे खर्च करने वाला हूं, पर ये पैसा मेरे नॉर्मल सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहने देता हूं. 10% मतलब 10,000 रुपये मैं खर्च करने वाला हूं. तो आप वो कभी भी नहीं कर पाओगे. बिकॉज जब भी वो एक्शन लेने का टाइम आएगा, जब भी एजुकेशन पे खर्चा करने का टाइम आएगा, आप हमेशा रिस्ट्रिक्ट कर जाओगे. बट यही अगर वो पैसा एक सेपरेट जार में पड़ा होगा, एक अलग से आपको पता होगा कि ये पैसा रखा ही इसी चीज के लिए है, तो आप वो खर्चा कर लोगे. सो यू हैव टू सेग्रीगेट इट इन डिफरेंट अकाउंट्स. यू हैव टू segregate it in different accounts. One way I told you is open different saving accounts. Second is make RD, recurring deposit accounts with your bank. Third is you can open sub accounts. अगर आपको अलग सेविंग अकाउंट मैनेज नहीं कर रहे हैं तो एक ही अकाउंट में अलग सब अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं. यू कैन कॉन्टैक्ट योर बैंकर फॉर दिस. द फोर्थ थिंग इज कि आप SIP स्टार्ट कर सकते हो कैश मार्केट की, लाइक नॉट इन इक्विटीज बट मे बी इन डेट फंड्स. अब फंड्स और मे बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो फंड्स हैं, आप उसकी एक SIP स्टार्ट कर सकते हो. दैट एवरी मंथ ऑन दिस डेट दिस SIP ऑफ दिस अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम माई अकाउंट. एंड आई नो कि ये जो SIP चल रही है ये मेरे इस पर्पज के लिए है. मे बी ये मेरे फॉरेन ट्रैवल के लिए है. ये SIP मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ एज LTSS जो मेरे फॉरेन ट्रैवल के लिए है, या फिर ये मेरे एजुकेशन के लिए है. सो दैट इज ऑल्सो वॉट यू कैन डू. सो दिस इज वॉट you have to do to be the best money manager. You have to divide your sources and आपको अलग अलग अकाउंट्स, अलग अलग सिस्टम में उस पैसे को हर महीने डालना है. फेवरेबली ऑटोमेट करके उसको डालना है. बिकॉज अगर आप खुद की जस्ट विल पे छोड़ दोगे तो वो वापस ऑटोमेट नहीं हो पाएगा. यू विल अगेन बी वर्किंग फॉर मनी एंड द मनी विल नॉट वर्क फॉर यू. सो one action point I have, two action points that I have is, number one, define your percentages. अपना पैसा डिफाइन कर लो कि कितने रुपए, कितना परसेंटेज मैं FFA में डालूंगा, कितना परसेंटेज मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, कितना रुपया वो हो रहा है. ऐसे उसको लिख के कॉपी पेन में अपना कर लो.
And second is open these different accounts, open RD, open your government security SIP, do that. But do that. Yes. Thank you for listening to this episode. Thank you everyone. I really appreciate if you can comment on this video and let me know what you think about it, and what are the things that you want me to share. What are the things about money that really stop you from being financially free? So you can like this video if you want to, you can share with everyone who thinks it will be beneficial for, and most important is please comment on this. Yes, thank you.